In this lecture, we will discuss about the motion in two dimensions, source and sinks. This is chapter number 5. First, 5.2 section, stream function or current function. Let u and v be the component of velocity in dimensional motion. Then the differential of equation of streamline is, you know that dx upon u equal to dy upon v, and to simplify it, v dx minus u dy equal to 0 you can write, but it is then it is exact equation. Therefore, applying the condition of exact equation, now we know that the equation of continuity is given by delta u upon delta x plus delta v upon delta y equal to 0, but it is the exact condition of the equation 1. Therefore, you can write here a function v dx minus u dy equal to d psi, or d psi equal to del psi upon del x dx plus del psi upon del y dy, and equating the coefficient of dx dy respectively, v equal to delta psi upon delta x and u equal to minus delta psi upon del y. Now, thus the function psi is known as the stream function, or stream lines are given by the function psi equal to c. इस प्रकार स्ट्रीम लाइंस हमें एक स्ट्रीम फंक्शंस प्राप्त हुआ है साई, और जो स्ट्रीम लाइंस आर गिवन बाय दिस फंक्शन डी साई इक्वल टू 0 साई इक्वल टू सी. साई इज ए स्ट्रीम फंक्शन और करंट फंक्शन. Now 5.3 physical significance of stream function. In this figure you can see here, let us take a streamline LM and take a point P. We draw a tangent from the x-axis and make it theta angle, and take a point Q, and in the length of LM, LP equal to S, and the length of P or Q is delta S. Delta S, it is written here in the middle. And let u and v be the component at p of the velocity. Let u be the component of velocity at the point p. Then the flux होता है प्रवाह, पानी का प्रवाह. Then the flux passing through across the element pq from right to left is given by the equation this, and you can write here LP equal to S in the figure, and PQ equal to LQ equal to S plus delta S. And here I told you that let U be the velocity component at P, and now then the velocity at P along inward drawn normal Pn along. अब ये देख रहे हैं आप कि यहाँ जो P पर एक हमने नॉर्मल बना दिया, और इनवर्ड नॉर्मल ये एक्स एक्सिस की तरफ बनाया गया है डॉट डॉट करके. अब ये जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी एलोंग एन नॉर्मल अपरवर्ड कितने होंगे, वी कोस थीटा. वी कोस थीटा, अगर एन और वी जो है इसके बीच का एंगल, तो ये होगा वी कोस थीटा. ठीक है. और अगर नीचे की तरफ ये इनवर्ड में लिया जाए तो क्या होगा, यू साइन थीटा. अब जो एक्रॉस जो वेलोसिटी है यहाँ पर, देन वेलोसिटी एट पी अलोंग इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल पी एन, जो अपर वाला वी कोस थीटा माइनस यू साइन थीटा हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से ये वेलोसिटी हुई. अब वी नो दैट यू और वी क्या है, आप अभी पहले ही आपने प्राप्त किए हैं इन टर्म्स ऑफ करंट फंक्शन, इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स. और from the differential calculus you know that cos theta equal to dx upon ds, sin theta equal to dy upon ds. Thus flux across curve pq from right to left. जो pq है इसमें फिगर में आप देख सकते हैं, जो प्रवाह है फ्लूइड का across the curve pq from right to left is given by velocity into del s. तो v cos थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू डेल एस. अब टोटल फ्लक्स एक्रॉस कर्व,
अब टोटल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट कर देंगे L to M तक पूरे कर्व में जो ये फ्लक्स है, प्रवाह है फ्लूइड का। तो अब टेकिंग द लिमिट LM V cos थीटा माइनस U sin थीटा ds, और U V की वैल्यू रख देते हैं करंट फंक्शन के रूप में, cos थीटा sin थीटा की रख देते हैं। और इस तरह से हमें, और LM क्या है, psi1 psi2 आर द करंट फंक्शन, psi1 एट L एंड psi2 एट M be the current function। तो psi1 to psi2 d psi equal to psi2 minus psi1। thus a property of the current function is that the difference of its values, current function का जो difference है at 2 points represent the flow across the line joining these points। ठीक है, now go to next page। remarks 3 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्यू आर और क्यू थीटा जो वेलोसिटी हैं फ्लूइड की पोलर फॉर्म में दिखाई गई हैं, लेकिन जैसे ये फिगर दिखाया गया है, लेट क्यू आर पी बी द पॉइंट, पोलर पॉइंट आर थीटा, क्यू थीटा इज द नॉर्मल वेलोसिटी, क्यू आर इज द रेडियल वेलोसिटी, और यू कैन से दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यू आर वेलोसिटी components in the direction of r and theta increasing respectively। ठीक है, अब इसे जो है हम जानते हैं कि then we know that the flux across delta s into normal velocity from right to left, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो नॉर्मल वेलोसिटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस डेल्टा एस क्या होगी, साई प्लस डेल साई माइनस साई अपॉन डेल एस, तो इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एस। इसे यूज़ करते हैं तो क्यू आर वेलोसिटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा चाप है आपका, अगर हम इसे रोटेट करें क्यू थीटा की तरफ तो डेल्टा थीटा हो जाएगा, और जो ये आर है वे आर प्लस डेल्टा होगा, दोनों का डिफरेंस डेल्टा आर आ जाएगा। तो ये जो है आपका बना डेल साई अपॉन आर डेल्टा थीटा, चाप बराबर त्रिज्या गुना कोण, इस तरह से। तो लिमिट डेल्टा थीटा ले लेते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा। इसी तरह से क्यू थीटा वेलोसिटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस डेल्टा आर है, अक्रॉस वे डेल्टा आर डेल्टा थीटा थी चाप के अक्रॉस, और ये डेल्टा आर है, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा आर टेंड टू 0 डेल साई अपॉन डेल आर, डेल साई ऊपर वाला हो गया ये करंट फंक्शन, अपॉन डेल्टा आई जहाँ से क्रॉस कर रहा है इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल आर, ऊपर वाले फार्मूले से इस तरह से क्यू थीटा भी निकाल लिया। अब स्पिन कंपोनेंट 5.4, स्पिन कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साई, आप जानते हैं कि वोर्टिसिटी वेक्टर अगर 0 होता है तो मोशन इज रोटेशनल होती है, और इस स्पिन कंपोनेंट्स दे आर 0, तो देयरफॉर अगर हम यू वी की वैल्यू रखें इन स्पिन कंपोनेंट में तो दे सेटिस्फाई यू साई सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, राइट। अब 5.5 फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अगर z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, आई बराबर अंडर रूट माइनस वाई 1 है, और w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू फाई एक्स वाई प्लस आयोटा साई एक्स वाई है, फाई और साई आर देयर फर्स्ट, ये क्या है सब, साई और फाई को और इनके डेरिवेटिव्स को, ये कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, जैसे यू फंक्शनल एनालिसिस में था, सपोज दैट फाई एंड साई एंड देयर फर्स्ट डेरिवेटिव आर एवरीवेयर कंटिन्यूस, और साथ में जो इनका डिफ्रेंसिएशन है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एफ डैश इज यूनिक है, तो हम कहेंगे डब्ल्यू इज सेट टू बी एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन। देयर फॉर द नेसेसरी कंडीशन, तो जो सी आर कंडीशंस क्या होंगी हमारी टू बी एनालिटिक होने के लिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, दे आर सी आर कंडीशंस। फाई साई आर नोन एज कॉन्जुगेट फंक्शंस। और यहीं से ही हम ये एक एक्सप्रेशन ये भी करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, तो एफ जेड डब्ल्यू ये लिखने पर इस फॉर्म में फाई प्लस आयोटा साई इक्वल टू एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इम्प्लाइज, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू ऑन द बोथ साइड,
दूसरी बार करो विद रेस्पेक्ट टू वाई, और एफ डैश की वैल्यू इधर से इधर रख देते हैं, तो आप इनसे भी सी आर कंडीशंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी सी आर कंडीशन प्राप्त की जा सकती हैं एफ डैश एक्स वाई के एफ डैश किस में रखने पर, और इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट आयोटा और 1, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल वाई, इस तरह से। तो यहाँ से भी हम सी आर कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं। और 5.6 रोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशंस। लेट ये रोटेशनल मोशन, यदि फ्लूइड आपका रोटेशनल है तो वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। और कैसे होगा, यू इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, यू इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, नंबर 1। और इसमें अभी हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रीम फंक्शन साई एलोंग साई ऑलवेज एग्जिस्ट सच दैट यू इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, वी इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन अभी हमने ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, चूँकि स्ट्रीम लाइन यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम फंक्शन यू इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई, वी इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वेशन 2, और वेलोसिटी पोटेंशियल की 1। नाउ गो टू सेकंड पेज। दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्यों करेंगे, दोनों से हमें भाई यू की वैल्यू यू के साथ रखने पर, वी की वैल्यू वी के साथ रखने पर, दोनों से अगर हम इस तरह से इक्वलिटी रखें, यू और वी की वैल्यू रख दें एक दूसरे में, तो हमें सी आर कंडीशन मिल जाएंगी। और अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स या एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन करें, तो ये हो गया डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल साई इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये इस तरह से इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इससे ये हुआ कि ये जो है एक दूसरे के, दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड साई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि फाई इक्वल टू अगर दो फंक्शन है, फाई कांस्टेंट और साई कांस्टेंट है, और ये है फैमिलीज ऑफ कर्व्स हैं, तो इंटरसेक्ट ये सोच करता है इंटरसेक्ट आर्थोगोनली, दे इंटरसेक्ट आर्थोगोनली। डी फाई को अगर डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई रखें, और इसी तरह से साई को डी साई बराबर डेल साई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई डी वाई रखें, तो और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दोनों की प्रवणता m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस आनी चाहिए, जो इससे इस जो ये इक्वेशन है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, इसे सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब फाई और साई जो फैमिली ऑफ कर्व्स है दे कट आर्थोगोनली, दस द कर्व्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी पोटेंशियल, द कर्व्स ऑफ इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट आर्थोगोनली, इसका मतलब ये है। और फिर उसी तरह से हम इक्वेशन 3 की मदद ले लेते हैं। अगेन बाय 3 वी गेट, एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एक बार दूसरी इक्वेशन का वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, और दोनों को ऐड करते हैं, तो फाई जे हार्मोनिक फंक्शन बना, यानी कि इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। इसी तरह से विद रेस्पेक्ट टू वाई करते हैं एक बार, है ना, और एक बार एक्स के करते हैं, साई को डेल स्क्वायर फाई डेल, इस तरह से, और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो साई और फाई आर हार्मोनिक फंक्शन, दे सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, इससे ये प्रूफ हो जाता है। अब 5.7 ACR कंडीशन इन पोलर फॉर्म, हम फंक्शन उसी तरह से रखते हैं, w इक्वल टू एफ जेड, उनकी वैल्यू रख देते हैं लेट फाई प्लस एटा साई इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी आर ई आई थीटा, एफ आर ई आई थीटा, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार आर के रेस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और इस तरह से एफ डैश आर ई आई थीटा की वैल्यू रख देते हैं और इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट कर लेते हैं, तो ये आपकी पोलर फॉर्म में आ गया, सी आर कंडीशंस आ गई। डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल साई अपॉन डेल थीटा, एंड डेल साई अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा। 5.8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, w इक्वल टू एफ जेड बराबर बाई फाई प्लस आयोटा साई इम्प्लाइज, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड
जेड के रेस्पेक्ट में एक्स के करते हैं सब, और इसे डी जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये सी आर कंडीशन से मदद लेकर डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल फाई अपॉन डेल वाई हो गया ये, ठीक है। और यू नो दैट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1, चूँकि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये लिख भी दिया। देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या हुआ, इनकी वैल्यू रखते हैं डेल साई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स के और डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो ये क्या हुआ माइनस यू प्लस आयोटा वी, और इज द कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ये क्यू के बराबर होगा, और पॉइंट्स वेयर द वेलोसिटी जीरो आर नोन एज द स्टैग्नेशन पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 5.9 कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर सम यूनिफॉर्म फ्लोज। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने ले लिया कंसीडर पहले में W इक्वल टू आई के जेड, उसी तरह से लिख देते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो U इक्वल टू 0 और V इक्वल टू के आया इसमें। तो किसके अलोंग वेलोसिटी आई यूनिफॉर्म, वाई एक्सिस के V इक्वल टू के है इसमें, तो यूनिफॉर्म फ्लोज अलोंग वाई एक्सिस। नाउ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर 10 W इक्वल टू आयोटा वी जेड लिख सकते हैं, भी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये फिगर दिखाया गया है इसमें। तो इस तरह से हमने के स्थान पे वी रखा। क्यों रखा, क्योंकि वी इक्वल टू स्मॉल के है ये यहाँ पर, ठीक है। यू इक्वल टू 0 है, तो मैग्नीट्यूड इसे कैपिटल वी से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसिडर वो W इक्वल टू माइनस के ई की पावर माइनस एल्फा, इस तरह से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू माइनस यू प्लस आयोटा वी इक्वल टू दिस माइनस के कोस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा, और इक्वेटिंग कर देते हैं यू इक्वल टू कोस एल्फा के कोस एल्फा इक्वल टू के साइन एल्फा। और इनका जो ये ब्रैकेट में दिखाया गया है यू स्क्वायर, हम इनका स्क्वायर और ऐड करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आया, और के किसके बराबर, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये किसके बराबर है, इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी। यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहे हैं, जो इसका फ्लो है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो। तो इस तरह से हमने इसे W इक्वल टू दिस और इसे लिख सकते हैं W इक्वल टू माइनस ये U माइनस आयोटा वी जेड है, तो माइनस वी लिख सकते हैं के स्थान पर यहाँ पर e की पावर माइनस आई अल्फा जेड। तो इट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल्स आपको जो एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन है 5.10, इसमें से एग्जाम्पल 1 और 17 और 22 करना है, यानी कि 1, 17 और 22। नाउ कम टू 5.11 सोर्स एंड सिंक्स। ये सब पढ़ाया है, ये बेसिक पढ़ाया है अभी तक। करंट फंक्शन जो पहले इसमें जो पेज पर पढ़ाया है करंट फंक्शन, और उससे जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल सी आर कंडीशंस और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस तरह से जो पढ़ाए हैं वे अब ये आगे काम आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सोर्स एंड सिंक्स, सेक्शन 5.11 सोर्स एंड सिंक्स। सबसे पहले सोर्स और सिंक्स क्या होता है, ये जनरली आप जानते हो, अगर आप कहीं से पानी आ रहा है ना, तो उसे सोर्स कहेंगे। सोर्स मतलब जहाँ से पानी हम प्राप्त कर रहे हैं सोर्स, सिंक्स जहाँ से जा रहा है, जहाँ से पानी जा रहा है उसे सिंक्स कहेंगे। निकल रहा है पाउंड, आउट इज गोइंग टू आउट। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल रूप में मैथमेटिकली सिंपल सोर्स, इस तरह से हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सोर्स, इफ़ द मोशन ऑफ ए फ्लूइड consist of symmetrical radial flow, ठीक है। if the motion of a fluid consists of symmetrical radial flow in all directions proceeding from a point, the point is known as a simple source. सॉरी। इसी तरह से जो ये है, if the motion of a fluid consists of a symmetrical radial flow in all directions proceeding from a point, the point is known as simple source. सिंक में क्या है,
if the flow is such that the fluid is directed radially inwards to a point में गुजारा है from all direction in a symmetrical manner is known as a simple sink. Strength of the source, the mass m of fluid coming out from the origin is a unit in a unit time. स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स क्या होता है, जो मास है और फ्लूइड का वो कमिंग आउट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ ए सोर्स. इसी तरह से नंबर 4 स्ट्रेंथ ऑफ द सिंक, इसमें क्या है, गोइंग आउट है ना इन ए यूनिट टाइम. इन ए टैंक एट द ओरिजिन द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड गोइंग इनटू द सिंक इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ द सिंक. ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये ऊपर से पानी आ रहा पहले वाले में सोर्स में, इससे ये टैंक भर रहा है. दूसरे वाले में ये सिंक है, इसमें जो पानी आपका आउट हो रहा है. ठीक है, तो ये पहले वाले में भर रहा है, बाहर से आ रहा है, दूसरे वाले में ये खाली हो रहा है, तो इसे सिंक कहेंगे. सिंक और सोर्स का ये एक तरह से दिखाया गया है. और जनरली आप जानते हैं, अगर सिंक जो आप किचन वगैरह में पानी जो टोटी से पानी आता है वे आपका सोर्स हो गया, जो सिंक में जो नीचे जाता है वो आपका सिंक हो गया. तो इस तरह से ये इसे जनरली मैं इस डेफिनेशन इसी तरह से लिखेंगे जो मैं की बुक में डिफाइन किया गया है, और लेकिन समझ सकते हैं इसे इस तरह से. तो ये अब रिमार्क्स है इसका. अब अगर वेलोसिटी यूनिक है, सिंस द वेलोसिटी इज यूनिक एट ए पॉइंट सो यूजुअली नो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. यदि वेलोसिटी यूनिक है तो दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. अगर यूनिक नहीं है इसका मतलब ये है कि फ्लो फील्ड्स में हैव सिंगुलरिटीज़, यानी कि दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर. स्ट्रीमलाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी. अब सेक्शन है 5.14 डबलेट और डाइपोल इन टू डायमेंशन. डाइपोल क्या होता है, डबलेट ए कम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम एट ए स्मॉल डिस्टेंस ए पार्ट. ये नीचे फिगर भी दिखा दिया है. एक सिंक है, एक सोर्स है, कम्बिनेशन ऑफ ए सिंक, ए कम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम एंड ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस एम एट ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस ए पार्ट. वेयर इन दी एम की वैल्यू क्या है, वेयर इन द लिमिट एम इज टेकन इनफाइनाइटली लार्ज ग्रिड एंड डेल्टा एस इनफाइनाइटली स्मॉल, बट इनका प्रोडक्ट जो होगा एम डेल्टा एस प्रोडक्ट फाइनाइट होगा. So that the product m delta s remains finite and equal to mu. Mu is the strength, is called the strength of the doublet. And line delta s taken in the sense from minus m and plus m is taken as the axis of the doublet. Thank you.